Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe my channel and press the bell icon for the new updates. So today in this video we are going to discuss the new chapter of corporate governance, that is organizational structure of board of directors. So let us begin with the topic. So first comes introduction. According to section 149 of the Act, the directors of the company are collectively referred to as the board of directors or board of the company. The board is the apex governing body of the company. It can be rightly said that a company's board is its brain because all the company's actions are planned by its board. The board of directors of the company plans the company's policy, control its management and makes all important decisions. That is why it is deemed to be the apex governing body of the company. So according to section 149 of the act, जो directors होंगे company के, they are collectively referred to as board of directors or board of the company, and जो board of directors होंगे वो एपेक्स गवर्निंग बॉडी होगी कंपनी की, बिकॉज जितने भी कंपनी के एक्शंस होंगे all actions are planned by its board. So the board of directors of the company plans the company's policy, control its management and make all the company decisions. So जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी की पॉलिसी को प्लान करेंगे, मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे एंड जितने भी कॉरपोरेट डिसीजंस होंगे वो कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ डीम्ड टू बी द एपेक्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी. सो एज पर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every company shall have a board of directors consisting of individuals as directors and shall have, as per section 149 of the Companies Act 2013, सभी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने मैंडेटरी हैं. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होगा? इंडिविजुअल्स होंगे एज डायरेक्टर्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स होंगे इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी and 2 directors in case of private company and 1 director in case of 1 person company. and maximum number of persons कितने होंगे as directors? एक company में 15 directors. it means maximum limit कितनी है directors की? 15 directors. So a company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution, and such class or classes of companies as may be prescribed shall have at least 1 woman director. अगर एक कंपनी ने मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करनी है, इट मीन्स 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, तो उस कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा पहले मीटिंग में. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एटलीस्ट 1 पर्सन ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? वुमेन डायरेक्टर हो. So at least 1 director should have stayed in India for a total period of not less than 180 days in the previous calendar year. And board of directors में एक पर्सन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसने इंडिया में स्टे किया हो for a total period of not less than 180 days. So every listed public company shall have at least 1/3 of the total number of directors as independent directors. जितनी भी पब्लिक कंपनी होंगी लिस्टेड, एटलीस्ट उनमें 1/3 पर्सनस ऐसे होने चाहिए एज डायरेक्टर्स हु आर वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीन्स वो पर्सनस, वो डायरेक्टर्स जिनका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, ना ही उनका रिलेशन होगा कंपनी के साथ, बट दे आर ओनली वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, और जो कंपनी की गुडविल को प्रमोट करने के लिए कंपनी के साथ जुड़े हैं. इट मीन्स उनका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, वो ना ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, बट वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेम्यूनरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 1/3. एंड
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेगी कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज. सो independent director means a director other than the managing director, whole time director or nominee director who in the opinion of board is a person of integrity and possessive relevant expertise and experience, who is not a promoter of the company nor does he have any pecuniary relationship with the company. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर होगा ना ही होल टाइम डायरेक्टर होगा कंपनी का, बट वो ऐसा पर्सन होगा जो कंपनी के लिए वर्क करेगा बिकॉज उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टाइज होगी उसके पास, बट वो ना ही कंपनी का शेयर होल्डर होगा, ना ही कंपनी का प्रमोटर होगा और ना ही कंपनी के साथ उसका कोई भी रिलेशन होगा. नेक्स्ट, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा एज़ पर सेक्शन 152 वो ऑफिस को होल्ड करेगा फॉर अ टर्म अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी बट शैल बी एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट ऑन पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो ऑफिस को होल्ड करेगा फॉर अ पीरियड अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड वो एलिजिबल होगा, दोबारा से उसकी री अपॉइंटमेंट भी हो पाएगी इन द कॉरपोरेशन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी. So, Section 150 of the Act describes the manner and procedure for selection of independent directors and maintenance of data bank of such directors. So, it is clear in Section 150 कि क्या मैनर होगा, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सिलेक्शन होगी और उनका जो डाटा है उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा. And Section 151 provides for the appointment of director elected by the small shareholders. So जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया होगा उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनका इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, वो कहाँ प्रिस्क्राइब है सेक्शन 151 में. A listed company must have one director elected by small shareholders on its board. एक लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्शन किसने की हो, स्मॉल शेयर होल्डर्स ने की हो. स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपीज़ और सच अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब. स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स वो शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं और उनकी वैल्यू कितनी है, नॉट मोर देन 20,000 रुपीज़ or any other sum as may be prescribed. And in case of one person company, एक इंडिविजुअल मेंबर बन सकता है डायरेक्टर, बट 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर कितने होंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्टर होगा, सिंगल पर्सन होगा, बिकॉज 1 पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर होगा और वही सभी अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा as per the provisions of Section 152 subsection 1 of the Companies Act 2013. Next, only individuals can be directors. So according to Section 152, no body, corporate, association or firm can be appointed director of a company. Only an individual can be so appointed. This is so because a director has to function individually on the behalf of company and he is personally responsible for all his actions as a director. So सिर्फ इंडिविजुअल ही बन सकता है डायरेक्टर कंपनी का, ना ही कोई एसोसिएशन बन सकती है डायरेक्टर कंपनी की, ना ही कोई बॉडी कॉरपोरेट, ना ही कोई फर्म अपॉइंट हो पाएगा एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बिकॉज जो एक डायरेक्टर होगा उसे इंडिविजुअली फंक्शन करना होगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी एंड वो सभी अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी. So, no company shall appoint or reappoint any individual as director of the company unless he has been allotted a director identification number under Section 158 of the Companies Act 2013. कोई भी कंपनी
किसी भी इंडिविजुअल को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती, ना ही उसे रीअपॉइंट कर सकती है जब तक उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा। और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जब एक पर्सन के पास होगा तो ही उसकी अपॉइंटमेंट हो पाएगी किसी कॉरपोरेशन में एज अ डायरेक्टर। एंड जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा ये उसे अलॉट किया जाएगा अंडर सेक्शन 158 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, restriction on the number of directorships. So as per section 165 of the Companies Act 2013 provides that after the commencement of this act, no person shall hold office at one and at the same time as director of more than 20 public companies at a time, where a director already holding office in 20 companies is appointed. The appointment shall not take effect and shall become void unless within 1 year of the commencement of this act he vacates his office in some companies as to bring down the number of 20 as provided by section 165 of the Companies Act 2013. It means as per section 165 of the Companies Act, कोई भी पर्सन 20 पब्लिक कंपनीज़ से ज़्यादा कंपनीज़ का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। इट मीन्स रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो मोर देन 20 पब्लिक कंपनीज़ से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। एट द सेम टाइम वो डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करेगा इन ओनली 20 पब्लिक कंपनीज़। इन केस अगर उसने एज अ डायरेक्टर होल्ड किया ऑफिस इन मोर देन 20 पब्लिक कंपनीज़ तो उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो वॉइड हो जाएगी एज़ पर सेक्शन 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट। So as per section 165 of the Companies Act, the maximum number of directorship that an individual can hold, including alternate directorship, is 20, of which not more than 10 can be public companies, जिसमें से 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनीज़। इट मीन्स अगर एक पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है तो वो 10 कंपनीज़ जो कि पब्लिक होंगी, 10 पब्लिक कंपनीज से ज़्यादा पब्लिक कंपनीज़ का डायरेक्टर नहीं बन सकता एट अ टाइम। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंपनीज़ का डायरेक्टर वो बन सकता है कितनी कंपनीज़ का, 20 कंपनीज़ का, जिसमें से 10 से ज़्यादा क्या नहीं होनी चाहिए, पब्लिक कंपनीज़। इट मीन्स रिस्ट्रिक्शन है डायरेक्टर पे कि वो 20 कंपनीज से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता, जिसमें से मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज़ नहीं होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए जिसमें से पब्लिक कंपनीज़। नेक्स्ट, क्वालिफ़िकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए डायरेक्टर्स की, उनके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। सो द रूल्स गवर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज आर: no person shall be capable of being appointed as a director of the public company having a share capital unless he has, कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं हो पाएगा एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही हैज़ बीन अलॉटेड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट, रिटन में उसका कंसेंट होना चाहिए जो कि साइन हो, filled हो with the registrar of companies within 30 days of his appointment in such manner as may be prescribed. Next, उसने साइन किया हो मेमोरेंडम को फॉर हिज क्वालिफ़िकेशन शेयर्स, उसके पास उसके क्वालिफ़िकेशन शेयर्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट, एक रिटन अंडरटेकिंग उसे देनी है, साइन करवानी है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ to take qualification shares from the company if any and pay for them. Next, एक एफिडेविट भी होना चाहिए उसके पास जो कि फिल्ड होगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू द इफेक्ट दैट हिज क्वालिफिकेशन शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन हिज नेम, कि जो वो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं उसके अपने नेम पे।
and only an individual can be appointed as a director. कोई भी फर्म, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट, कोई भी कॉरपोरेशन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगी. ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. नेक्स्ट कम्स डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स. सो कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जब एक पर्सन कैपेबल नहीं होगा ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड का होगा, अगर एक पर्सन इंसॉल्वेंट होगा, अगर एक पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया होगा, इट मीन्स अगर एक पर्सन क्रिमिनल होगा या उसने कोई भी मॉरल मिसकंडक्ट किया होगा, कोई भी ऑफेंस कन्विक्ट किया होगा, या फिर अपनी कॉल्स को टाइमली पे नहीं किया होगा, या फिर कोर्ट ने उसके अगेंस्ट कोई अगर ऑर्डर पास किया होगा, उसे डिस्क्वालीफाई किया होगा किसी रीज़न से. तो ये सिचुएशंस ऐसी होंगी जब एक पर्सन कैपेबल नहीं होगा टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट कम्स द पावर ऑफ बोर्ड. तो बोर्ड की क्या पार्ट्स होंगे, क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. फर्स्ट कम्स जनरल पावर्स वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. So as per section 179 of the Companies Act 2013, the board shall be entitled to exercise all such powers and do all such acts as the company is authorized to exercise and do. It means board of directors के पास वो सभी powers होंगी, वो सभी एक्ट वो कर सकता है जो कि कंपनी ने उसे प्रिस्क्राइब किए होंगे इन द आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी. So, in memorandum and articles of the company, the powers of the board are co-extensive with those of the company itself. कंपनी की पार्ट्स मेंशन होंगी इन द आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. एंड आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी पावर मेंशन होंगी कि क्या उन्हें काम करना है और क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके पास अथॉरिटीज़ हैं. नेक्स्ट स्पेसिफिक पार्ट्स. अब कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स भी होंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, लाइक कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, डे टू डे मैनेजमेंट को ओवरसी करना. नेक्स्ट शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करना विच आर अवेलेबल फॉर इशू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना, कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर, एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, डायरेक्टर्स की जो कैजुअल वैकेंसीज़ हैं उन्हें फिल करना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, एंड कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट कंट्रीब्यूट करना टू द नेशनल डिफेंस फंड फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल डिफेंस. नेक्स्ट कम्स द पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट बोर्ड्स मीटिंग. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कुछ ऐसी पार्ट्स होंगी जो उन्हें एक्सरसाइज करनी है ओनली इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड. सो वो कौन कौन सी पार्ट्स होंगी. फर्स्ट इज़ द पावर टू मेक कॉल्स ऑन द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स. अब अगर कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना अमाउंट पे नहीं किया, तो जो उनकी अनपेड कॉल्स थी उन्हें मंगवाना, डिबेंचर्स को इशू करना, मनी बोरो करना, इन्वेस्ट करना कंपनी के फंड्स को, और लोन्स प्रोवाइड करना. तो ये सभी पार्ट्स किसकी होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बट विच आर टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट द बोर्ड मीटिंग. सो इन एडिशन टू द अबव मेंशन पार्ट्स उनकी कुछ और पार्ट्स भी होंगी, लाइक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना कंपनी के बिहाफ पे जिससे कि कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड हों. नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना इफ़ ही इज़ ऑलरेडी द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ एनी कंपनी. इट मीन्स किसी पर्सन को अपॉइंट करना एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. इन्वेस्ट करना कंपनी के फंड्स को इन एनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर बॉडी कॉरपोरेट. नेक्स्ट
अपॉइंट करना किसी भी पर्सन को एज अ मैनेजर इफ़ ही इज़ ऑलरेडी द मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी करना एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इट मीन्स डिक्लेयर करना सॉल्वेंसी के टाइम पे, वाइंडिंग अप के टाइम पे, एज अ मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। नेक्स्ट, receiving the notice of disclosure of interest of directors। नेक्स्ट कुछ पार्ट्स हैं विच मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड अनएनिमसली। तो वो कौन कौन सी पार्ट्स हैं? पावर टू अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर, पावर टू इन्वेस्ट इन एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एनी बॉडी कॉरपोरेट। इट मीन्स ये वो पार्ट्स होंगी जो कहीं भी मेंशन नहीं होंगी। इट इज़ इम्प्लाइड, फर्स्ट पार्ट उनकी यही है कि किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना और मैनेजर को अपॉइंट करना। नेक्स्ट, किसी भी शेयर्स में और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना किसी और बॉडी कॉरपोरेट में। नेक्स्ट कम्स द रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी बोर्ड्स पावर। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। फर्स्ट इज़ उन्हें कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी ना ही सेल करनी है, ना ही लीज़ पे देनी है और ना ही डिस्पोज ऑफ करनी है। अगर उन्हें कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी को सेल करना है, लीज़ करना है, डिस्पोज ऑफ करना है तो सबसे पहले कंपनी का कंसेंट उन्हें लेना होगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। नेक्स्ट, invest otherwise than in trust securities the amount of compensation received by the company as a result of merger or amalgamation। अगर उन्होंने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है अदर देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ तो उन्हें सबसे पहले कंपनी का कंसेंट लेना होगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, अगर उन्होंने किसी भी अदर बॉडी कॉरपोरेट से या किसी पर्सन से या किसी फर्म से मनी को बोरो करना है तो उस केस में भी उन्हें सबसे पहले कंपनी का कंसेंट चाहिए बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, रेमिट और गिव टाइम फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन और एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। इट मीन्स अगर कंपनी ने किसी पर्सन को लोन रीपे करना है तो उस चीज़ के लिए भी कंपनी से उनको कंसेंट लेना होगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस अगर कंपनी ने कोई भी अपना लोन रीपे करना है। तो ये सिचुएशंस ऐसी होंगी जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे रेस्ट्रिक्शन होगी कि इन सिचुएशंस में कंपनी का कंसेंट लेना ज़रूरी है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। So this is all about our today's video. It is the first lecture of Board of Directors organizational structure in CG. So in next video we will discuss the remaining topics. So thank you so much.